بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر غور۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور لبنان کا فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنانی آرمی چیف کی ملاقات۔ دفاعی تعاون اور دو طرفہ عسکری تعلقات بڑھانے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا لبنان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور۔ لبنانی افواج سے دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ لبنانی آرمی چیف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عملی مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن استحکام اور بین الاقوامی امن مشنز میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں متعدد دہشت گرد زخمی۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اسٹیشنز اور بینکس پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی 4 گاڑیاں اور بارودی مواد بھی تباہ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران لانس حوالدار محمد عباس جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری۔ بار بار تبدیلی کے بعد حکومت کا بڑا فیصلہ۔ بجٹ کی فائنل تاریخ کا اعلان۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 4 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ تنخواہوں کے لیے 650 ارب اور پینشنز کے لیے 550 ارب 80 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ بجٹ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز زیر غور۔ بیرونی معاونت سے جاری منصوبوں کے لیے 54 ارب روپے رکھنے کی سفارشات۔ پنجاب حکومت وفاق کو مالیاتی رعایت دینے پر تیار۔ پنجاب اسمبلی ذرائع کا دعویٰ۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے سکتی ہے، جس سے وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورا کر سکے گا۔ پنجاب کو NFC کے تحت قابل تسلیم محاصل ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے بجٹ کے خدوخال کو حتمی شکل دے دی۔ پنجاب کے نئے مالیاتی سال کے مجموعی بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہے۔ ہماری پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بجٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم بجٹ اجلاس میں شامل ہوں نہ ہوں، یہ وقت عوام کو ریلیف دینے کا ہے۔ بجٹ آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ سہیل آفریدی بجٹ پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ بجٹ سے قبل وزیر اعلیٰ KPK کی بانی PTI سے ملاقات ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے زرعی شعبے کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے وفد کی ملاقات۔ شرکاء نے موجودہ علاقائی صورتحال میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ حالیہ سیڈ پالیسی اور زرعی اصلاحات کو زرعی شعبے کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی میں زرعی شعبہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ زرعی شعبے کی پیداوار، ترقی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بھر کے ماہرین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گلوبل فنڈ کے وفد کی ملاقات۔ صحت کے شعبے میں باہمی تعاون اور جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकत दारी को बहुत कदर की निगाह से देखता है और तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के किरदार को सराहता है। ग्लोबल फंड पाकिस्तान के हेल्थ केयर निज़ाम की बेहतरी में एक अहम शराकत दार है। हुकूमत मुल्क से टीबी, HIV और मलेरिया जैसे मोज़ी अमराज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तक़सीमकार कंपनीज की निजकारी पर अहम इजलास, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म की रिस्कोस की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। पहले मरहले में इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद बिजली कंपनीज की निजकारी की जाएगी। निजकारी के तमाम मराहिल शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। सऊदी अरब, तुर्की और चीन के सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शोज़ का आगाज़ होगा। फितना अल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म, खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित, मंजर आम पर आ गए। मुबैना ऑडियो लीक्स में इंतखाबात और एहतजाजी सरगर्मियों पर गुफ्तगू का इंकशाफ। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। कहा, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और इन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान, सरदार अमान शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मौसर मालूमात फराहम करने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। इत्तला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। IG पुलिस को इनामी स्कीम पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। कलदम अवामी एक्शन कमेटी से सैयद फैसल गिलानी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत, खूनरेज़ी पर तशवीश का इजहार। कहा, हम बुनियादी हुकूक के लिए इकट्ठे हुए थे, कई मुतालबात मंजूर भी हुए। मौजूदा सूरत हाल में रावलाकोट में खून की होली खेली जा रही है। कलदम एक्शन कमेटी की इन कार्रवाइयों को देखते हुए लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाइयाँ। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक चैला के इलाके में किए गए ऑपरेशन के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद किए गए। तहकीकात के दौरान एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद हुआ। हसास तनसीबात से मुतालिक नक्शर दस्तावेज़ात भी कब्जे में ले ली गई। बरामदशुदा मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी तजिया जारी है। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो का आइंदा चंद रोज़ में GB का दौरा मुतवक्के। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि आज़ाद जीतने वालों को साथ जोड़े। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अली से टेलीफोनिक रब्ता। MT ऑनर 25 में सवार पाकिस्तानी मगबियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार का सोमाली हम मनसब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। मगबियों की खैरियत, उनकी जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने गैर यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए कोशिशों की यकीन दहानी भी करवा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार से पाकिस्तान में इटली की सफ़ीर मार्लेना आर्बलन की अलविदाई मुलाकात। इसाक डार ने सफ़ीर मार्लेना को कामयाब सिफारती मुद्दत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान और इटली के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और लेबर मोबिलिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफ़ा हुआ। मार्लेना ने पाक इटली ताल्लुकात में पेशरफ्त को खुश आइंद करार दिया।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होना दोनों ममालिक के लिए बाइस मसरत है। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक चीन दोस्ती का जश्न मना रही है। पीपैक पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और सदर शी जिनपिंग के दौरों से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिली। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी और सकाफती रवाबित में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात नई वुसअतों की जानिब गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आला सतही रवाबित ने दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत दी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी का खिताब, कहा तिजारत, तवानाई, सनत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ रहा है। पाकिस्तान शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शमूलियत का ख्वाहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2030 तक इक़्तिसादी ताउन के प्रोग्राम पर मुत्तफ़िक है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुआहदे के लिए संजीदा दिखाई देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, आइंदा 2 हफ्तों के दौरान ईरान से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आने का इम्कान है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ सकती है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता करके कहा कि ना नई जंग चाहता हूँ और ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया था कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेला पाएगा। ईरान और अमरीका मुमकिन मुआहदे के लिए पाकिस्तान के जरिए सिफारती राब्ते और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान की सालसी के जरिए मुख्तलिफ निकात पर अपनी आरा और तजवीज़ का तबादला कर रहे हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ख्यालात तजवीज़ के तबादले का अमल बदस्तूर जारी है। अब तक दोनों फरीक किसी हद में मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके, मगर मुज़ाकरात चल रहे हैं। तालिबान हमलो इस्तेहकाम कायम करने में नाकाम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए मुतादिद सिफारती और इंसानी इक़दाम किए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है, जिसके असरात पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इजरायली फ़ौजी अहदाफ पर मुतअद्दिद हमले किए। हिज़्बुल्लाह का टेलीग्राम पर बयान जारी, कहा कि जनूब मशरिकी मज़ाफ़ात में एक इजरायली बुलडोज़र को तोपखाने से निशाना बनाया, जिसके बाद इसी इलाके में एक और फ़ौजी बुलडोज़र पर गाइडेड मिसाइल दागा गया। इजराइल ने जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमला किया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इजरायली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत दे दी। लेबनानी सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि फ़ौजी हल इजराइल को सलामती नहीं दे सकता। इजराइल तैयार हो तो आए, बैठ कर बात करते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात जंगबंदी मुआहदे के बाद होगी। हमें लेबनान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी की हालत को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अदम जारियत मुआहदा पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। आटे और गंदम के नर्ख मुस्तहकम रखने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। फ्लोर मिल्स को 3,300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। ब्रीफिंग में वाज़ेह किया गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने के शवाहिद मौजूद नहीं। पंजाब में गंदम के ज़खायर का डाटा इकट्ठा करने का अमल जारी। पंजाब अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्टर्स के लिए खुसूसी वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि न्यू सब्जी मंडी में कायम किए जाने वाले इस फैसिलिटेशन डेस्क का मकसद माल बरदार गाड़ियों को रोड परमिट और दीगर सहूलियात एक ही जगह पर फराहम करना है। फैसिलिटेशन डेस्क को आइंदा हफ्ते के दौरान मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा।
जड़ी बूटियों और रिवायती अद्वियात का शोबा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में 85% अद्वियात मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। नए अस्पताल बनने के बावजूद मरीजों का दबाव कम नहीं हो रहा। सेहत का मौजूदा निज़ाम बीमारियों के फैलाव को रोकने के बजाय मज़ीद दबाव का शिकार होता जा रहा है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, 3 माह के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.99 कमी कर दी गई। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में कमी जनवरी तक मार्च की सिपहर माही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। 645 अफराद, 251 घरों, 28 होटलों और 114 दुकानों, 176 मोटरसाइकिलों और 89 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 17 मशकूक अफराद और 18 मोटरसाइकिलों को मजीद तफ्तीश के लिए मुताल्लिका थानों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सिंध के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद दर्जे की गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी गई। कराची 37, दादू, जेकबाबाद 48, जबकि तुरबत और मोंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 12 जून तक दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। अमरीका के वफाकी जज का अहम फैसला। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की H-1B वीज़ा फ़ीस पॉलिसी मुस्तरद कर दी। $1 लाख वीज़ा फ़ीस गैर कानूनी करार। वफाकी जज का फैसला। वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये इक़दाम करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। $1 लाख की रकम दरहकीकत टैक्स है। ऐसी फ़ीस या टैक्स ज़ायद करने का इख्तियार इंतज़ामिया के पास नहीं। स्पेन में यूरोपीय पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर अफगान तालिबान वफ़द के मुमकिना दौरा ब्रसेल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इंसानी हुकूक की तंजीमों, यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और अफगान शहरियों की शिरकत। इंसानी हुकूक तंजीमों और अफगान शहरियों ने तालिबान की यूरोपीय इदारों तक रसाई मुस्तरद कर दी। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 5 साल के दौरान अफगानिस्तान ने ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक बड़े कैद